अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट उर्दू में। तो चलिए बढ़ते हैं आज के खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285, डिप्टी एडिटर सुनीता महतो 8609415270। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। बाराबनी ब्लॉक में बीजेपी मुंडियाल ने आज बाराबनी थाना में एहतजाजी रैली निकाली। कुछ दिन पहले नादिया जिला में विजय सिंह नामी बीजेपी कारकुन को फांसी देने के खिलाफ बाराबनी थाने में आज एक एहतजाजी मुजाहिरा किया गया था। हल्का बाराबनी के बीजेपी मुंडियाल के सदर सधन रावत, मुलाय उपाध्याय, कृष्णा पडनाथ को स्वामी, सुजीत मंडल, अख्तर हुसैन, गोपीनाथ मंडल, मनोज शर्मा की रिपोर्ट। बाराबनी से मुजाहिरीन ने तकरीबन 15 मिनट तक सड़क पर मुजाहिरा करते हुए बाराबनी दुम्हानी से जमुड़िया जाने वाली सड़क ब्लॉक कर दी। मनोज शर्मा ने इतला नहीं दी। মারা গেছে এই অভিযোগ করে আপনারা দায় সাচ্ছেন। আপনারা এরকম ভাবে চলবেন না। আপনারা একটা করে দৃষ্টিটা হয়ে জেনে রাখুন, 2001 নির্বাচন কমিশনের এরকম ডেপুটেশন দিচ্ছেন। দেখুন, আমরা জানি জায়গায় জায়গায় ডেপুটেশন শুধুমাত্র প্রতিবাদ এবং গণজাগরণ করার জন্য, মানুষের কাছে বা আমাদের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য। কীভাবে চারিদিকে বিজেপি কর্মীদেরকে ওই একই কায়দায় ত্রিলোচন দুলাল সহিস থেকে শুরু করে আমাদের বিজয়শীল পর্যন্ত গলায় দড়ি দিয়ে হত্যা করানো, এমনকি এই দলদাস পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় আমাদের কর্মীদেরকে লকআপের মধ্যে হত্যা করছে, তার বিরুদ্ধে আমাদের রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদ মিছিল আমাদের চলতে থাকবে যতক্ষণ না আমরা গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার করতে পারছি, এবং পুনরুদ্ধার করব। এই আমাদের আত্মপ্রত্যয় রেখে আমাদের এই অভিযান চলছে এবং আগামী দিনেও চলতে থাকবে, যতক্ষণ না এই গণহত্যা লীলা বন্ধ হচ্ছে, যতক্ষণ না দিকে দিকে এই বিরোধী কণ্ঠস্বরকে রুদ্ধ করে দেওয়ার অপচক্রান্ত চলছে। এই চক্রান্ত যতদিন না সমাপন করতে পারছি ততদিন আমাদের আন্দোলন চলতে থাকবে। দাদা, এইরকম ধরনের তো বিজেপির উপরে বহুদিন ধরে অত্যাচার হচ্ছে, আপনারাও ডেপুটেশন দিচ্ছেন, কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া কিছু হয়েছে কি এখন অবধি? আমরা আশা করি না। যে সরকারের মুখিয়া নিজেই এই হত্যা লীলাকে সমর্থন করে, তো সেই সরকারের এই দলদাস পুলিশ প্রশাসন যে সম্পূর্ণ মেশিনারিটা যারা দলদাসে পরিণত করেছে, চিফ সেক্রেটারি থেকে একজন থানার ওসি পর্যন্ত, শুধুমাত্র একজনের অঙ্গুলির হেলনে চলে, সেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এবং এই জন্য আমরা বারবার রাজ্যপালকে আবেদন করেছি। রাজ্যপাল সাহেব আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রপতিকে আবেদন করেছে এই বিষয় নিয়ে শীঘ্রই সেরকম প্রোগ্রেসিভ এবং পজিটিভ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে, এবং এটা আপনারা দেখতে পাবেন সেটা খুব শীঘ্রই, খুব বেশি দেরি হবে। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी जिसकी मिठाइयाँ और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीक़ों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान SBI बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप रब्ता कर सकते हैं 0341230517 या फिर 9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। बाराबनी से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। बाराबनी ब्लॉक का पूजो के प्रमोटरों में से एक पिंटू पांडे ने बताया कि बेहतर पुराने लक्ष्मी पूजा आज बगैर किसी जुलूस के पिछड़ा ग्राम पंचायत के तहत कलीजोरा गांव में अदा किए जाते हैं। আগে নিজে ফেলার আগে একটু এইদিকে ইয়ে করবেন। এখন ফেলবে না, হ্যাঁ। কেলেজোড়াতে আপনার
সব পূজার মতন লক্ষ্মী পূজা একটা অন্যরকম, প্রচুর ধুমধাম হয়। তো এবছর যেহেতু সরকারি নির্দেশিকা আছে, সরকারি নির্দেশিকা মেনে আমরা কিছু করছি না। আমাদের প্রসেসিং অনেক কিছুই থাকে, কিছুই করছে না। এবার সব কিছু আমরা বন্ধ রেখেছি। বিশ্ব এখন মহামারীতে, কোভিড মহামারীতে মানে কিছু বলার নেই আর কি। তো সেই জন্যে আমরা আর কি এই ঠাকুর এখান থেকে পূজা নিয়ে বিসর্জন করছি, কিছু প্রোগ্রাম রাখছি না আমরা। এই গ্রামে কতদিন ধরে এই ধরনের পুজো চলে আসছে? দেখুন, আমাদের গ্রামে প্রায় 3টে পুজো হতো, একটা তো বন্ধ হয়ে গেছে, আর একটা আদি পুজো প্রায় আমাদের জানা নেই, আমরা জন্মের পর থেকে দেখছি। আর এটা আমাদের মোটামুটি এই হরিমন্দির কমিটির যে একটা পুজো হয়, সেটা আপনার প্রায় 23-25 বছর ধরে চলছে। আপনার নামটা? আমার नाम पिंटू पांडे। सीआईएसएफ के कमांडर मिथिलेश कुमार के हुक्म के मुताबिक मोहनपुर कैंप के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर प्रदीप बल्हारा गैरकानूनी कोयले के खिलाफ मुसलसल छापे मार रहे हैं, जिससे कोयले के कोर्स में हलचल मचा हुआ है, जिसके नतीजे में सीआईएसएफ बिगुनिया ओसीपी के ओबी डैम के करीब वाक़या है। छापा मारा ईसीएल सिक्योरिटी के साथ मिलकर 132 टन गैरकानूनी कोयला जब्त किया गया। पांडेश्वर असेंबली हलका के रामनगर 3 नंबर के फुटबॉल ग्राउंड में बसंतपुरा मां प्रोग्राम के तहत एमएलए जतिंदर कुमार तिवारी के ताउन से 3500 ख्वातीन के बीच साड़ियां तकसीम की गई, जिसमें मरकज वजन के 21 बूथ के वोटर पहुंचे। इस मौका पर मौजूद पांडेश्वर विधानसभा के एमएलए जतिंदर कुमार तिवारी ने कहा, जब तृणमूल कांग्रेस अपनी वालदा और बहनों को साड़ी देती है तो बीजेपी पूछती है कि पैसे कहां से आते हैं। मैं बीजेपी भाइयों से कहना चाहता हूं कि हमें आपको क्यों कहना चाहिए, आप हमसे पूछे बगैर भी बड़ी पार्टी को डबल साड़ी दें, लेकिन ये वाहिद सवाल नहीं है जो काम करेगा। ये हमारे तमाम मेंबरों और तृणमूल कांग्रेस के अच्छे मुफक्किरीन की हिमायत की वजह से नहीं है। हमारी रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने पहले ही ऐलान किया था कि दुर्गा पूजा से छठ पूजा तक तमाम माओ बहनों को नए कपड़े दिए जाएंगे। हमने सिर्फ पंडेश्वर विधानसभा में 60,000 साड़ी वितरण का ऐलान किया, जो छोरा जोन से शुरू किया गया था। इस मौका पर यूथ तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक सदर संजय यादव, गोपीनाथ नाग, ओसी मंडल, पांडेश्वर पंचायत समिति के सदर मदन बोरी, किशोर सिंह, छोरा जोन के सदर रामचरित्र पासवान, केंद्र ग्राम पंचायत के सरबरा अल्पना सूत्राधर, क्रिएटिव मुखर्जी, छोरा ग्राम पंचायत ने शिरकत की। डिप्टी हेड ग्रुप प्रसाद चक्रवर्ती, पशपा बोरी, हराधन गोरानी, प्रहलाद साव, लल्टो सिंह और पार्टी के दीगर मेंबरान मौजूद थे। आइए सुनते हैं एमएलए जतिंदर तिवारी ने क्या कहा। সবাই আমাদের পরিবারের সদস্য, একটা পরিবারের মতো আমরা থাকি। এবং আপনারা জানেন যে যারা পরিবারে থাকে তাদের নিয়মই হলো যে কোনো উৎসবের আগে, দুর্গা পূজা হোক, কালী পুজো হোক, ছট পুজো হোক, তার আগে নতুন বস্ত্র মায়েদের হাতে তুলে দেওয়া, বোনেদের হাতে তুলে দেওয়া, এটা আমাদের নিয়ম। এবং সেই নিয়ম মেনেই, যেহেতু আপনারা আমাদের পরিবারের সদস্য, তাই সেই নিয়ম মেনেই আমরা বিভিন্ন অঞ্চলে মায়েদের বোনেদের হাতে আমরা নতুন বস্ত্র তুলে দিচ্ছি। ইতিমধ্যে আমরা ছোড়া অঞ্চলে বস্ত্র তুলে দিয়েছি, আমরা নবগ্রাম অঞ্চলে বস্ত্র তুলে দিয়েছি এবং আজ কেন্দ্রা অঞ্চলে প্রায় 4000 মায়েদের বোনেদের হাতে আমরা নতুন বস্ত্র তুলে দেব। কিন্তু আমার দুঃখ যে বিজেপির নেতারা যেদিনই আমরা বস্ত্রের অনুষ্ঠান করছি তার পরের দিন তারা পেপারওয়ালাদেরকে, টিভিওয়ালাদেরকে বলছে যে এই পয়সা এদের কাছে কোথা থেকে আসছে, কোথা থেকে লোককে শাড়ি দিচ্ছে। আচ্ছা বলুন, ছেলে যদি তার মাকে দুর্গা পূজা বা কালী পুজোর আগে একটা বস্ত্র তুলে দেয়, সেটা কি খুব অন্যায়? দাদা হিসাবে নিজের বোনকে যদি কেউ একটা নতুন বস্ত্র তুলে দেয়, এটা খুব অন্যায়? আমরা কি খুব অন্যায় কাজ করছি এটা? प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मूवमेंट इंग्लिश। अंडाल में पार्टी रहनुमा और कारकुनों के कत्ल के खिलाफ बीजेपी ने अंडाल पुलिस स्टेशन के सामने बीजेपी कारकुनों के सामने एक रैली का इनेकाद किया और एहतजाज किया और इस सिलसिले में सीआई देवज्योति साहा को एक डिमांड लेटर हवाले किया। बीजेपी मंडल 2 के सदर जिंतू मिश्रा ने कहा कि जिस तरह बीजेपी कारकुनों को पूरे बंगाल में कत्ल किया जा रहा है, इसी तरह बीजेपी कारकुनों के खिलाफ भी झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। इसके खिलाफ आज पूरे मगरबी बंगाल थाने में बीजेपी कारकुनान हैं मुहासरे में है। साथ ही बीजेपी ने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस रियासत में कानून का गलत इस्तेमाल कर रही है और हमारे तमाम रहनुमाओं के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी रियासती हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पुलिस इंतज़ामिया
दे दी की हिदायत पर अमल कर रही है, लिहाजा आज बीजेपी अंडाल पुलिस स्टेशन के मुहासरे की मुखालिफत को कर रही है ताकि पुलिस गैर जांबदाराना तौर पर काम करे। अगर ऐसा है तो, अगर नहीं तो फिर हमें रियासत भर में एहतजाज करना पड़ेगा। इस मुजाहिरे में बीजेपी के ज़िले सेक्रेटरी छोटन चक्रवर्ती, मंडल सदर जिंतू मिश्रा, सकन बोरी, सोमनाथ मोदी, शंकर मिश्रा वगैरह मौजूद थे। इसी वक्त पंडेश्वर पुलिस स्टेशन और लाडोहा पुलिस स्टेशन में भी बीजेपी के कारकर्दगी का मुजाहिरा किया गया और मंडल लेटर बाइट जारी किया गया है। मंडल 2 के सदर जिंतू मिश्रा मौजूद थे। আমরা আজকে থানা ঘেরাও কর্মসূচি নিয়েছি এবং সারা পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার যেভাবে বিজেপি কর্মীদের ওপর অত্যাচার করছে, খুন করছে এবং সেগুলোকে মিথ্যা বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং পুলিশকে দলগত बढ़ाकर में मंगल को कमेटी के जरिए गोरा रामदास जी का लाइटिंग फेस्टिवल सोमवार के रोज बढ़ाकर हनुमान स्टैंड के गुरुद्वारा में मनाया गया। रांची से आए कीर्तन जितना के सरबराह भनी सिंह ने भजन कीर्तन पेश की, जहां कुल्टी बढ़ाकर चिरकुंडा नियामतपुर के अकीदतमंद मौजूद थे। कोरोना की वजह से सरकारी कवायद व जवाबित को समझते हुए महदूद तादाद में लोगों को बुलाया गया, जहां बहुत सारे ख्वातीन भी मौजूद थीं। इस सिलसिले में बढ़ाकर गुरुद्वारा पर बंधक कमेटी के सदर जोगन सिंह ने कहा कि हर साल की तरह प्रकाश उत्सव का इस त्यौहार महदूद लोगों को मौजूदगी में मनाया गया। पूरा गुरुद्वारा रोशन लाइटों से सजा हुआ था। गुरुद्वारा होने के दौरान प्रसाद तकसीम और लंगर अंदाज किया गया था। इस मौके पर सेक्रेटरी जतिंदर सिंह, जोगंदर सिंह, जतार सिंह, अमरजीत सिंह, अशोक सिंह के अलावा मैनेजिंग कमेटी के मुतअद्दिद मेंबरान भी मौजूद थे। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मूवमेंट इंग्लिश। श्रीपुर से राबी पासवान की तरफ से श्रीपुर में भी बीजेपी के जमुड़िया मंडल की तरफ से रैली निकालकर बीजेपी कारकुन के हिलाकत के खिलाफ मुजाहिरा किया गया और थाना में मेमोरेंडम दिया गया। इस मौका पर डॉक्टर प्रमोद पाठक, ब्रिजमोहन पासवान, सुनील सिंह, धर्मेंद्र सिंह, रमा गोराई, मेथू माझी, प्रजापति बोई और पंकज तिवारी के साथ दीगर लोग मौजूद थे। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी कर्मचारी पर आक्रमण হচ্ছে का तृणमूल कांग्रेस जवाब दाओ, भारत माता की जय। कांग्रेस स्लोगन दें एक बढ़िया से, ठीक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कुल्टी असेंबली हलका के तहत जावेद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट आज इख्तिताम पजीर हुआ। हयात स्पोर्ट्स क्लब ने रॉयल स्पोर्टिंग क्लब को 1 गोल से शिकस्त देकर टूर्नामेंट जीत लिया। इस टूर्नामेंट के फाइनलिस्ट बुनियादी तौर पर तृणमूल जिला के नायब सदर तबस्सुम आरा, तृणमूल यूथ के सदर रूपेश यादव, अकलियती सील के जिले सदर सैयद अफरोज मौजूद थे। टूर्नामेंट के इख्तिताम के बाद फतेह टीम को तबस्सुम आरा के हाथों 20,000 की ग्रांट की रकम दी गई। फाइनल में पहुंचते ही हारने वाली टीम को 1 कप और 15,000 रुपये दिया गया। तबस्सुम आरा जो इस मौका पर मौजूद थी, उन्होंने कहा कि फ़ुटबॉल हमारे मगरबी बंगाल का मरकज़ी खेल है। इसी तरह इस खेल के ज़रिए जिसमें तवानाई बाकी रहती है, लिहाजा नौजवानों को इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलकर फ़ुटबॉल जैसे खेल पर तवज्जो देनी चाहिए, जो नौजवानों को आगे ले जाएगी, नस्लें तंदुरुस्त और सेहतमंद रहेंगी। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मूवमेंट इंग्लिश। नतोड़िया सोमवार से पूरी रियासत के साथ ही ज़िला पुरुलिया के नितोड़िया ब्लॉक में भी सरकारी नर्क पर धान की फ़रोख्त शुरू हो गई है। सोमवार के रोज़ नितोड़िया के BDO जे कुमार सामिंत, मनहम राइस मिल के नुमाइंदे ADO प्रेमल ब्रह्मन मौजूद थे। मालूमात के मुताबिक सोमवार से नितोड़िया ब्लॉक में सरकारी नर्क पर धान की खरीदारी का आगाज़ किया गया था। इस मौका पर ब्लॉक ज़राअत के अफसर प्रेमल बर्मन ने कहा कि पिछले सालों की तरह इस साल भी हमने आज से धान की खरीदारी शुरू कर दी है। सरकारी छुट्टी के दिन के बाद सोमवार से हफ्ता तक धान खरीदारी मरकज़ सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक खुला रहेगा। ये सिलसिला 31 मार्च तक जारी रहेगा। इन्होंने कहा कि पिछले सीज़न में जिन तमाम काश्तकारों ने अंदराज किया था, इन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। नई रजिस्ट्रेशन के लिए वोटर कार्ड, पासपोर्ट साइज़ की 2 तस्वीरें, बैंक पासबुक की कॉपी और ज़मीन के किसी भी दस्तावेज़ात की ज़रूरत होगी। ज़राअत अफसर ने बताया कि इस साल खरीफ सीज़न में धान की सब्सिडी की कीमत 1868 रुपये फ़ी क्विंटल होगी और जोश की कीमत
₹1888 है। इन्होंने कहा कि एक किसान 90 क्विंटल धान फरोख्त कर सकता है। ये भी कहा कि कोर्ट की मौजूदा सूरत हाल में मुआशरती फासला बरकरार रखने के लिए किसान एंड्रॉयड मोबाइल ऐप के ज़रिए अपने नाम दर्ज कर सकेंगे। डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस आसनसोल में रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए तारीख अदायगी के प्रोग्राम की तकमील। आसनसोल में 2 नवंबर 2020 को आज डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस आसनसोल के नए मीटिंग हॉल में ऑन डेट अदायगी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मिस्टर M.K. मीना, एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल ने तस्फिये PPO तस्फिये की तफसीलात और रिटायर्ड एम्प्लॉय लेबरल हेल्थ स्कीम RELHS के 45 मतों का मुलाजमीन बेवा ख्वातीन जिनमें 31 जनरल रिटायर्ड थे को हाजिर कर दिया। इस प्रोग्राम में अक्टूबर 2020 के महीने में आसनसोल डिवीज़न के रिटायर्ड मुलाजमीन में जिन्होंने अदम इस्तेहकाम का मुजाहिरा किया है 1 लाख रुपए शामिल हैं। इस सर्विस के खात्मे के बतौर 16,31,68,810 रुपए की रकम मुख्तस की गई थी और इस दौरान कम्युनिटी के फासले के बरकरार रखने के कवायद को एहतियात से रखा गया था। इस प्रोग्राम में मोहतरमा ES सैम्क डिविजनल पर्सनल ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर GS दास, डिविजनल मेडिकल ऑफिसर आसनसोल और दीगर अफसरान मौजूद हैं। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मूवमेंट इंग्लिश। नौजवानों के तृणमूल कांग्रेस कारकुनों के हौसले बढ़ाने के लिए कल्याणेश्वरी में तंजीमी इजलास का इनेकाद किया गया। सलानपुर में 2021 के असेंबली इंतखाबात के आगाज़ के साथ ही कल्याणेश्वरी इलाके में यूथ तृणमूल कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए यूथ रहनुमा विजय सिंह की सरबराही में बाएं बाजू के निजी ऑडिटोरियम में तंजीमी इजलास का इनेकाद किया गया। इस खित्ते में सैकड़ों नौजवानों के बारे में तबादला ख्याल किया जा रहा है और इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों के साथ घर तक जाकर लोगों तक कैसे पहुंच सकें। इसके अलावा इस बात पर भी तबादला किया गया है कि इस खित्ते में क्या तरक्यात काम बाकी हैं। इस तनाज़ुर में कल्याणेश्वरी खित्ते में तृणमूल कांग्रेस के एक सरगर्म रहनुमा विजय सिंह ने कहा, रियासत पर 10 साल राज करने वाली तृणमूल कांग्रेस ने बहुत तरक्की की है जिसका तसव्वुर रियासत के अवाम भी नहीं कर सकते थे। बाराबनी के MLA A. बेदन उपाध्याय ने 10 सालों में हर इलाके में तरक्की की है, लेकिन अब तक डोंडवा पंचायत 49 से 50 के दोनों बूथ जीत नहीं सके हैं। लिहाजा इस बार हमारा एक मकसद है कि हम अपने आप में मौजूद तमाम गुस्से को भला कर नौजवानों को पहले रखें। उपाध्याय को भारी वोट से फतह दिलाना। इस मीटिंग में यूथ तृणमूल कांग्रेस के कारकुन बुमल गोराई, पप्पू यादव, सनोज सिंह, दीपक मालिक, अनुज सिंह, मोन्टू टैगोर और बहुत से लोगों ने शिरकत किया। सबसे पहले हम लोग आज जो हम लोग जितने भी हम लोग 49-50 के जितने भी बूथ कर्मी थे बाथानबाड़ी से, दंदुआ से, सभी को हम लोग बुला के एक ठो हम लोग अपना संगठन को यूनिटी को 2021 में इलेक्शन कैसे तैयारी किया जाए, सबसे पहले उसका हम लोग तैयारी मतलब हम लोग उसका चर्चा किए किस तरह विधानसभा को जिताया जाए, क्या हम लोग में कमी है, क्या कैसे लोगों का क्या चीज़ समस्या को समाधान करने से हम लोग का पार्टी के संगठन और आगे बढ़े। सबसे पहला हम लोग चर्चा ये किए। दूसरा चर्चा हम लोग इस किए कि हम लोग का जो लेफ्ट बैंक का जो बूथ है हम लोग का, खासकर जो 49-50, इस बूथ को हम लोग कभी भी जीत के इनाम में नहीं दिए हैं आज तक हम लोग विधानसभा को। उसके लिए हम लोग अपना आपस में मंथन किए हैं कि इस बार हम लोग किसी हालत में दोनों बूथ को जिताना है और विधानसभा को गिफ्ट देना है कि ये 2 बूथ हम लोग को जिता के दिखाएं। ये हम लोग को बार बार ऊपर से सुनने मिलता है कि आप लोग को उस बूथ कभी नहीं जीता। इसी का चलते हम लोग आज चर्चा की है। नहीं, बहुत ऐसा बुनियादी सुविधा है जिससे ये इलाका हमेशा जूझता रहा। आज मुद्दा भी उठा, कहीं आंगनबाड़ी मुद्दा हो, सड़क हो, नाला हो और अस्पताल जैसा बहुत मुद्दा, बैंक जैसा मुद्दा, तो ये लोगों का मांग था। इस पर आप लोगों का क्या कहना है? ये चीज़ हम लोग एक थे हमारे सीनियर आदमी, वो एक चीज़ बहुत ही अच्छा बोला कि आज हम लोग का बूथ का एक आशा कर्मी नहीं है। कुछ भी लेडीज़ का कोई भी दिक्कत होता है तो हम लोग का एक आशा कर्मी का यहाँ एक ज़रूरत है। उसके लिए हम लोग अपने जो नेतृत्व कर रहे हैं और विधानसभा को इस चीज़ हम लोग अपना प्रस्ताव रखेंगे हम लोग इस चीज़ का। विधान उपाध्याय 10 साल यहाँ का विधायक लगभग रहा, कार्यकाल उनका 10 साल रहा, तो 10 साल के बाद भी यहाँ कुछ बुनियादी सुविधा उस तरह का जो आज मुद्दा उठ रहा है, तो इससे पहले क्या कुछ काम हुआ या लोगों में नाराजगी है? काम देखिए हम लोग का यहाँ बहुत हुआ। आदमी देखिए कभी भी खुश नहीं रहेगा, आप भी नहीं खुश रहेंगे, हम भी रहेंगे। जितना हम लोग काम मिलेगा हम लोग चाहें कि और हम लोग को काम मिलते रहे, लेकिन हम लोग चाहें कि हम लोग इस बूथ को जिता कर हम लोग अपना सर ऊंचा करके जाके दादा के पास बोले दादा ये काम हम लोग को ये कर देना है, ये कर देना है, तब दादा भी खुशी होकर हम लोग का इस जगह में काम करेंगे।
करेंगे। दोनों बूथ ना जीतने का क्या कारण है मुख्य रूप से? दोनों बूथ ना जीतने का कारण यही है कि हम लोग का जो यहाँ का लीडरशिप जो थे और जो हैं रात में वो लोग चेंज हो जाते हैं, वो लोग चेंज हो जाते हैं, तो फिर यहाँ का पब्लिक लोग क्या बोलेगा? जो हमारे लीडरशिप थे जो भी हैं वो रात में दूसरा जो पार्टी है जो विपक्ष उन्हीं के साथ में वो लोग साठगांठ कर ले रहे हैं। नहीं, आपका संगठन में अगर फूट है तो आप लोगों को लेकर के बैठ करके, अगर आप ही में फूट है, आप ही के संगठन में, पार्टी नेतृत्व में, शीर्ष नेतृत्व में अगर फूट है तो आप इसको कैसे ये कर सकेंगे? आप उसको ठीक करेंगे या बूथ को ठीक करेंगे? नहीं, आगे से हम लोग आगे जितना भी हम लोग बूथ के जितने आदमी हैं मेंबर सबको बोला गया है इस बार हम लोग को जिताना है। उसके लिए हम लोग को कोई भी किसी से ना हम लोग को झूठ झमेला ना किसी से चाहिए, आपस में मिलकर हम लोग को इस बार बूथ को जिताना। कोई भी अगेंस्ट भी आदमी, हम ही लोग आदमी अगर अगेंस्ट में वोट डालने बोलेगा इस बार वो चीज़ तो होने वाला नहीं है, क्योंकि सब चीज़ समझ गया किसका कितना पानी में कौन है। आपका नाम? विजय सिंह लेपी। आज का SMS ऑफ द मोमेंट। विंस्टन चर्चिल ने कहा था, द पेसिमिस्ट सीज डिफिकल्टी इन एवरी अपॉर्चुनिटी, द ऑप्टिमिस्ट सीज द अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफिकल्टी। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।